Students, we are continuing from the previous topic, that is cell membrane. Till now we have studied the cell membrane structure and everything about the cell membrane structure, different models of the cell membrane like fluid mosaic model, Robertson model, sandwich model, everything we have gone through the structural part of the cell membrane. Moving on to the chemical structure of the cell membrane or chemical composition of cell membrane, how the chemical composition or how the cell membrane is being constituted, how the cell membrane is being constructed, that we are just going to see today. Here I must made you clear, earlier also during the structure of the cell membrane we have gone through the cell membrane is made of two major components, lipid and protein. That is why this is called as lipoprotein membrane. And in today's lecture I am just going to deliver some more points regarding that, even though I just completed more maximum points regarding the chemical structure there also in the chemical in the structure of the cell membrane. So moving on to the structural part. So chemical composition of the cell membrane we are observing. So three major components are there. Usually what we are understanding, what we are knowing about the cell membrane structure, that lipoprotein membrane, but here one additional component is present, that is carbohydrate. Carbohydrate is also playing very important role in the structure of cell membrane. So the protein, lipid and carbohydrate, three major components are present here in the cell membrane. So protein is around 58 to 60%. The major component of the cell membrane is the protein. Lipid is 40 to 42%, carbohydrate 1 to 8%. So this is what the combination of, or this is what the composition of the cell membrane. Protein is playing the maximum contribution, is going to contribute the maximum to the cell membrane structure. बाद में लिपिड का रोल आता है 40 से 42% और फाइनली कार्बोहाइड्रेट इज हैविंग 1 to 8%. ध्यान रखें, द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट हैज बीन आस्क्ड ऑलरेडी देयर इन द नीट एग्जामिनेशन. what is the composition of the cell membrane of the RBC? because हम सारी की सारी स्ट्रक्चर हमने कल previous lecture में भी देखा था कि when we are just going to study the structure of cell membrane, the RBC membrane is the best material, best suited material for the purpose of study of the cell membrane. So here that is why the question has been asked related to the RBC membrane, ki what is the actual percentage in the RBC, what is the actual percentage of protein and lipid in the RBC membrane. So here in RBC membrane, remember you have to go with that. In RBC membrane, the protein has 52% while the lipid has 40%. So 52 plus 40, 92%, and remaining part is of the carbohydrate. So remember this one, protein is having 52% only and the lipid is having 40%. So ratio of protein and lipid in any of the cell membrane is around protein and lipid ratio 1.2:1. ये ध्यान रखना है आपको. 3 पॉइंट क्लियर हो गए आपको. प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट रहेंगे. प्रोटीन रहेगा 58 से 60%, लिपिड रहेगा 40 से 42%, कार्बोहाइड्रेट होगा 1 to 8%. RBC membrane का क्वेश्चन पूछा जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज बीइंग स्टडीड बाय द घोस्ट RBC, और वहीं से केमिकल कंपोजिशन भी देखा गया था. तो RBC मेम्ब्रेन में प्रोटीन इज अराउंड 52% एंड लिपिड इज अराउंड 40%. रेस्ट ऑफ द पार्ट इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय द कार्बोहाइड्रेट. सो रेशियो पूछा जाए तो रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन इज 1.2 to 1, 1.2:1. Now moving on to one by one all the component, protein, lipid and carbohydrate. So first component, first structural component of cell membrane is the protein. So protein पहले ही आपको बताया कि 58 to 60% होता है नॉर्मली. सो ये मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है. जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है उन सभी का मेजर कंपोनेंट बनाता है प्रोटीन. हमने पहले भी देख रखा है कि प्रोटीन अरेंजमेंट के बेसिस पे दो तरीके के हो सकते हैं. वन इज कॉल्ड एज external protein or extrinsic protein or peripheral protein, and other one is called as intrinsic or integral protein. So extrinsic protein हमने पहले देखा था, the protein which found on the external surface of the lipid bilayer and they are loosely associated with that, और इनको आसानी से separate out किया जा सकता है from the सेल मेम्ब्रेन. और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इनको सेल मेम्ब्रेन से सेपरेट आउट करने के लिए पेरिफेरल प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन से कैसे सेपरेट आउट करेंगे, तो कुछ नहीं, नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द साल्ट रखना है और उसके साथ में ये आसानी से अलग हो जाएंगे. व्हेन वी आर जस्ट गोइंग टू कीप द सेल मेम्ब्रेन देयर इन the aqueous solution of the salt or salt solution, that time the peripheral protein can easily be detaches out from the cell membrane. दूसरा प्रोटीन आप जानते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन. इंट्रिंसिक प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन इज द प्रोटीन विच इज बीइंग कंप्लीटली एम्बेडेड और पार्शली एम्बेडेड इनटू द
लिपिड बाइलेयर हमने देखा था, सिस इंट्रिंसिक होता है, ट्रांस इंट्रिंसिक होता है, डोमेन हमने देखा हुआ है, सिस इंट्रिंसिक मीन्स व्हाट, which is partially embedded, and trans intrinsic that is completely embedded and cross the complete bilayer of the lipid. और cis और trans intrinsic का काम क्या होता है, चैनल प्रोटीन के फॉर्म में काम करते हैं. they are helping out in the process of transportation of the molecule and ion from the surface of cell membrane. Major portion इसी का होता है, that is 70% of the total protein component of the cell membrane. Because they are deeply embedded into the lipid bilayer, so this is very much difficult to take them out, this is difficult to separate them out. तो ये difficult होता है इनको separate करना, because they are deeply embedded inside the lipid bilayer. But if we wish to separate these proteins from the lipid bilayer from the cell membrane, so on that situation we need to treat the cell membrane with the strong bases by treating these proteins, or by treating this cell membrane with a strong bases, so that embedded proteins are can be recovered out, can be removed out, can be taken out from the cell membrane. Moving on to the proteins based on the structure. Now we have seen the protein based on the arrangement, integral and the peripheral protein, peripheral outside of the lipid bilayer, integral there inside, are embedded inside the lipid bilayer. Based on the structure and function, structural proteins are the proteins which helps in formation or establishment of the skeleton of the cell membrane. Carrier protein हम कई बार देख चुके हैं, carrier proteins are the proteins which are working for providing the particular passage for the transportation of the molecules and ions from outside to inside of the cell membrane, or from inside to outside of the cell membrane. Such proteins are also called as permease. So channel protein या carrier protein का मतलब क्या होगा, these proteins are useful in transportation of molecules and ions across the cell membrane, and these are called as carrier protein, channel protein or permease, because they are permitting the entry and exit of the molecule. They help in the transport of molecules. Next one is enzymatic protein. Enzymatic protein are having the catalytic power. They are going to catalyze the biological activities, metabolic activities occurring inside the cell. Lipoproteins, lipid and proteins combines to form the structural framework of the cell membrane. Glycoprotein is a protein which forms with the combination of carbohydrate units, और जब भी ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा तो ये एक रिसेप्टर प्रोटीन के फॉर्म में काम करेगा, which is going to receive out any of the external material from the surface. So this is what the structural protein, carrier protein, enzymatic protein, lipoprotein and the glycoprotein. Moving on to the next point. Next component of the cell membrane is lipid. पहले से हम जानते हैं लिपिड्स के बारे में. लिपिड्स आर पोलर इन नेचर. ने देखा था हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स आर देयर. एम्फीपैथिक इन नेचर हमने इसी बेसिस पे कहा था. एम्फीपैथिक मीन्स व्हेन द लिपिड्स इज हैविंग डुअल नेचर. One end of the lipid is having water attracting property, and one end of the lipid is having water repulsion property. Water attracting property means what? The portion of the lipid is going to attract the water, that is hydrophilic head, and the portion of the lipid, that is tail, is hydrophobic, that is going to repel out the water. So that is what the amphipathic in nature. और amphipathic word को यूज किया था हार्टले ने in 1936. Moving on to the types of lipids present in the cell membrane. One is called as phospholipid. The major composition of the cell membrane is made by the phospholipid. Structural framework बनाता हमने देखा था फ्लूइड मॉडल के हिसाब से. Phospholipid का मतलब क्या होता है? Lipid plus phosphate. So it is having additional phosphate group, and this is the major lipid of the cell membrane. Glycolipid, glyco plus lipid means glucose plus lipid or carbohydrate plus lipid. So when lipid is having additional carbohydrate component, then it is called as glycolipid. So lipid with one or more monosaccharide units are called as glycolipid. So here एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट. ये पूछे जाते हैं नीट एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, कि ग्लाइकोलिपिड्स के एग्जाम्पल हैं. तो सेरेब्रोसाइड ब्रेन में मिलता है, गैंग्लियोसाइड्स गैंग्लियन में मिलता है. थर्ड टाइप ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज स्टिरॉल. स्टिरॉल 3-4 तरीके के मिलते हैं. कोलेस्टेरॉल एनिमल्स में मिलता है, एनिमल में मिलने वाला लिपिड कंपोनेंट है. फाइटोस्टिरॉल, फाइटो मीन्स प्लांट, स्टिरॉल प्लांट्स में मिलेगा. फाइटोस्टिरॉल, आर्गोस्टिरॉल मेम्ब्रेन्स में मिल रहा है. तो
फास्फोलिपिड, फॉस्फेट कंटेनिंग लिपिड, मेजर होगा, ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग लिपिड सेरेब्रम में मिलेगा और गैंग्लियन में मिलेगा, तो सेरेब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड विल बी देयर। स्टेरॉल्स, 3 तरीके के स्टेरॉल मिल सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल इन द एनिमल सेल्स, फाइटोस्टेरॉल in the plant cells and ergosterol in the membranes. Moving on to the third, that is 1 to 8% carbohydrate. Carbohydrate is present in the least quantity, that is 1 to 8%. This is what generally the books are not considering the carbohydrate as the component of the cell membrane, but the carbohydrate is playing very crucial role, structurally very important, functionally this is very important. The carbohydrate whatever is present in the cell membrane, that is present in form of glycoprotein and the glycolipid. The carbohydrate present in the cell membrane, that is either in form of glycoprotein, glucose plus protein, carbohydrate plus protein, means pure carbohydrate is not present, or glycolipid, glucose plus lipid के फॉर्म में होगा। कार्बोहाइड्रेट जहां भी रहता है सेल मेम्ब्रेन में बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज शो करता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज antigenic properties. Antigenic properties means this is having a kind of identification of the molecules which are coming in contact with the cell membrane. This is going to decide which molecule has to move into the cell membrane or which should not be allowed to move in. ये चेक करता है मॉलिक्यूल्स को, कौन सा मॉलिक्यूल सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा मॉलिक्यूल सेलुलर स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, दैट हैज टू मूव इन, अदरवाइज दैट हैज बीन रिजेक्टेड बाय दिस कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। यही एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, बहुत स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दोज आर गोइंग टू चेक आउट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द मॉलिक्यूल्स. So that is what the antigenic property helps in the identification of the cell. और कंपैटिबिलिटी चेकिंग का मतलब ये होता है कि विच वन इज कंपैटिबल फॉर द सेल टू इंटर इनसाइड एंड विच वन इज नॉन कंपैटिबल टू द सेल विच इज नॉट एबल टू मूव इनसाइड द सेल. जो कंपैटिबल होगा, जो इंटर करने के लायक होगा, ओनली दैट मॉलिक्यूल विल बी अलाउड टू मूव इन, अदरवाइज no molecule will be allowed. So moving on to the next, now this is what the chemical composition of the cell. डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछा गया था सेल मेम्ब्रेन को लेके इन AIPMT, दैट इज फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट डिफ्यूजन के जैसी मूवमेंट है. डिफ्यूजन में होता क्या है कि लेटरल मूवमेंट होता है, लेटरल डिफ्यूजन होता है कि वन मेम्ब्रेन इज देयर एंड द मॉलिक्यूल हैज टू मूव फ्रॉम हियर टू हियर. द लेटरल मूवमेंट इज देयर कि सपोज दिस इज अ मेम्ब्रेन और उस मेम्ब्रेन के इस साइड से इस साइड मूवमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज द लेटरल डिफ्यूजन. बट इन केस ऑफ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट द मॉलिक्यूल्स आर डिफ्यूजिंग फ्रॉम द ट्रांसवर्स बेसिस. मीन्स व्हाट, दिस इज द लैटरल मूवमेंट फ्रॉम हियर टू हियर, बस ट्रांसवर्स मूवमेंट में कुछ इस तरीके से होगा, रैंडम मूवमेंट होगा. तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसवर्स डिफ्यूजन which involves the movement of lipids from one membrane surface to the another membrane surface. This is slower than the normal lateral diffusion. It demands a significant amount of energy. बहुत important concept है, that concept you must remember. flip flop movement पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत रेयर क्वेश्चन है. सो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और डिफ्यूजन में क्या होता है डिफरेंस? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में ट्रांसवर्स डिफ्यूजन होगा, नॉर्मल डिफ्यूजन लेटरल डिफ्यूजन होता है. एज कंपेरिजन टू द नॉर्मल डिफ्यूजन, द स्लोअर रेट ऑफ डिफ्यूजन अकर्स देयर इन द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, और इसको मेंटेन करने के लिए ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डिमांडेड. क्वेश्चन पूछा गया था इन AIPMT कि इन सेल मेम्ब्रेन इफ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट ऑब्जर्व, सो विच मॉलिक्यूल विल मूव और विच विल नॉट मूव. सो रिमेंबर, I am highlighting this point. According to the Fluid-Mogic model, lipid can rarely flip-flop but protein cannot. फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल के हिसाब से ये कहा गया लिपिड मॉलिक्यूल्स कैन परफॉर्म द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और ट्रांसवर्स मूवमेंट बट प्रोटीन कैन नॉट. ये आपको बेहतर तरीके से पता है बिकॉज प्रोटीन्स अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड-मोज़ेक मॉडल द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर, और जिसमें लिक्विड पोर्शन का फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? थ्रू द लिपिड मॉलिक्यूल्स ओनली. तो जब लिपिड मॉलिक्यूल लिक्विड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो मूवमेंट किसका शो होगा? लिपिड का होगा, और प्रोटीन उस लिपिड के साथ में मूव करेगा. तो वी कैन नॉट से द प्रोटीन्स आर मूविंग देयर. So proteins are not moving, rarely the lipid movement is there. The lipid is dynamic and the flexible structure thereon. Okay, moving on to the next point, the modification of the plasma membrane. Modification of plasma membrane का मतलब ये होता है based on the different type of the function, the cell membrane is going to modify itself टू परफॉर्म दैट स्पेसिफाइड फंक्शन. अलग अलग तरीके के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो सकती है. उन मॉडिफिकेशंस को किस तरीके से समझा जा सकता है, वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड. आपने पढ़ा हुआ है इन द प्रीवियस क्लासेस. वंस अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स. सो हाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज गोइंग टू मॉडिफाई इटसेल्फ.
So first modification of the plasma membrane is called as villi or the microvilli. आपको याद आ गया होगा, इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा होगा माइक्रोविलाइज एंड द विलाइज. इंटेस्टाइनल सरफेस इज हैविंग सम फिंगर लाइक evagination. The evagination, sometime what happen, the plasma membrane is evaginated out in form of the finger like surfaces or finger like projections. So from the surface of plasma membrane some finger like projections are present or originated. Those finger like structures are called as the विलाइज. अब कभी कभार इन विलाइज के ऊपर भी फिंगर लाइक इवेजिनेशन आ जाते हैं तो उनको कहते हैं माइक्रोविलाइज. ये ब्रश बॉर्डर सेल में आपने देखा होगा, ड्यूडेनम के केस में ब्रश बॉर्डर सेल या माइक्रोविलाइज मिलते हैं. तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इवेजिनेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज विलाई. और अगर विलाई के ऊपर भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, माइक्रोविलाई कहलाएंगे, बिकॉज दे आर कंपेरेटिवली स्मॉलर देन द विलाइज. यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विलाई. द क्वेश्चन इज देयर what is the importance of villi, what is the importance of villi. So remember, whenever wherever villi is there, so villi is working to provide the additional surface area for the purpose of a particular type of function, and basically these are providing the additional surface area like gaseous exchange, like absorption of the food. So this is what, so increase the absorption surface of the membrane. बेसिकली इंटेस्टाइनल एपिथेलियम का एग्जांपल लेते हैं, नेफ्रॉन का एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे हम ये कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि इफ नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन इज देयर, सो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी, स्ट्रेट होगी. बट इन केस ऑफ विलाई व्हाट विल हैपन, that will evaginate out in form of the finger like projection, and these finger like projections are called as villi. And what is microvilli? अब इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई के साथ में भी अगर दूसरे विलाइज निकल आए या विलाई का विलाई जो होगा वो क्या कहलाएगा, माइक्रोविलाई. सो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड में बोले, माइक्रोविलाई इज व्हाट, विलाई ऑफ विलाई. ओके, और फंक्शन दोनों का क्लियर है. एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ाना, जहां भी होगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी होगी, इतनी. बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विलाई यू कैन स्ट्रेच आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर सो मैनी फोल्ड. तो जितना ज़्यादा एरिया अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए वहां पे मिल पाएगा. ओके, सो इज इट ओके. Moving on to the next modification of the plasma membrane, that is called as desmosomes. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Desmosomes are macular adherens. Macular adherens, adherens मतलब चिपकाने वाला, अटैच करने वाला. तो दो एडजेसेंट सेल्स होती हैं, जो नेबरिंग सेल्स होती है, उनके बीच की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है जो एक दूसरे के साथ में एक एसोसिएशन डेवलप कराता है. दैट इज कॉल्ड एज डेस्मोसोम. बेसिकली इन केस ऑफ एनिमल सेल दिस इज बीइंग ऑब्जर्व्ड. प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू काम होता है. सो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है यहाँ पे दो सेल्स के बीच में, दो एडजेसेंट सेल, दो नेबरिंग सेल्स के बीच में सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर देयर. दोस प्रोजेक्शंस आर वर्किंग टू help out in joining of the two cells all together so that they could exchange the material in between them. So the finger like projection in between the adjacent cells. अब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि these projections can present on both the surface or these projection में present only on one surface. तो यदि दोनों surface पे present है then it is called as normally the desmosome. But if it is present only on one surface then it is called as hemidesmosome. So if it is present only on one side then it is called as hemidesmosome. और फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया, एडहेशन या अटैचमेंट के लिए दो सेल्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इसका यूज करते हैं. हियर यू कैन ऑब्जर्व अंडरस्टैंड बाय दिस डायग्राम. सपोज दिस इज द सेल सरफेस, तो इससे विलाई लाइक प्रोजेक्शन निकलेंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेंगे. तो इसके साथ में मिलने वाली यहाँ पे जो दूसरी सेल होगी ये एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएंगे. The cell which is lying here that will be attached to this one from that side. So this is what the desmosomes are, macular adherens, which is working for the joining of two adjacent cells. Two neighboring cells are joined together with the help of desmosomes or macular adherens. Dear students, next modification of cell membrane as per the demand of work, demand of function, that is interdigitation. इंटरडिजिटेशन, इंटर इन बिटवीन डिजिटेशन फिंगर. जिस तरीके से दो फिंगर एक दूसरे के बीच में क्रॉस होती हैं, फिक्स हो जाती हैं, उसी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिक्स होती है इन फॉर्म ऑफ इंटरडिजिट. इंटरडिजिटेशन भी अटैचमेंट का ही काम करता है. और इंटरडिजिटेशन कुछ इस तरीके से होता है कि द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वन सेल is going to make the ridges and another plasma membrane or plasma membrane of another cell is going to make the furrows. तो एक ridges बनाएगी और दूसरी furrows बनाएगी. तो ridges और furrows कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएंगे. सपोज दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ वन सेल, ये ridges का फॉर्मेशन करेगी और इसमें फिट होने के लिए दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन
एक फरोज का फॉर्मेशन करेगी। तो रिज और फरो का फॉर्मेशन होगा, दोनों के बीच में एक अटैचमेंट आ जाएगा, जिस तरीके से दो उंगलियां एक दूसरे के बीच में फंसती हैं। बट हियर रिमेंबर one potential gap is present. That potential gap is intercellular space, so that will be present in between the two plasma membranes in case of interdigitation. Next modification, tight junction or zonula occludens. Zonula occludens या tight junction दोनों जोनुला ऑक्लूडेंस या टाइट जंक्शन पूरी तरीके से इंटरडिजिटेशन के जैसा ही है, बट डिफरेंस इज दैट इन इंटरडिजिटेशन अ पोटेंशियल इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, बट इन केस ऑफ टाइट जंक्शन देयर इज नो पोटेंशियल स्पेस इज प्रेजेंट, वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है स्पेस। लास्ट वन इज द टर्मिनल बार और जोनुला एडहेरेंस, ये भी डेस्मोसोम के जैसे होते हैं, लेकिन इसमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये हुआ मॉडिफिकेशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेस्ड ऑन द फंक्शन वेयर एवर दे आर। So here we have completed all the structural aspect of cell membrane, different models, ultrastructures like fluid mosaic model, Danieli Davidson model, Robertson model, सब कुछ हमने कंप्लीट किया, फिर केमिकल कंपोजिशन कंप्लीट किया, एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। उसमें डेस्मोसोम देखा आपने, विलाइज देखा, हेमी डेस्मोसोम्स देखा, टाइट जंक्शंस देखा, इंटरडिजिटेशन देखा, ये सारे एडॉप्टेशन, सारे मॉडिफिकेशन आपने देख लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द फंक्शनल पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अभी तक हम स्ट्रक्चरल पार्ट को डील कर रहे थे, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द फंक्शनल पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शनल पार्ट जब भी पूछा जाए या फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन जब भी पूछा जाए, तो माय डियर स्टूडेंट यू हैव टू राइट डाउन ओनली द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट whenever the functional part of the cell membrane is demanded। जब भी function of cell membrane पूछा जाएगा तो dear student you have to write down what the membrane transport। So membrane transport is the functional part of the cell membrane। function of cell membrane पूछा तो आपको क्या बताना होगा, membrane transport। क्यों membrane transport बताएंगे, because the cell membrane is working only for exchange of the molecule, checking entry and exit of the molecule, this is what। तो हम यहाँ पे क्या देखने जा रहे हैं, how many types or how the cell membrane is working to ensure the entry and exit of the molecules there। so membrane transport में कुछ basic points हैं जो आप पहले से जानते हैं, that is what I am once again repeating here। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, आप पहले से जानते हैं। क्यों सिलेक्टिवली परमिएबल है, उसका कारण यहाँ पे नया आपके लिए आया है। द सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर इज बीइंग मेंटेन्ड बाय द एम्फीपैथिक नेचर ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन इन नीट एग्जामिनेशन कि व्हाई डू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, सो द सॉल्यूशन, द आंसर ऑफ दैट वन विल बी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल ड्यू टू द एम्फीपैथिक नेचर। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक होता है तो उसको वो उस तरीके से रिजेक्ट आउट कर देती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं तो सभी को रिसीव नहीं कर सकते। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ बोथ सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि मेम्ब्रेन इज कंसिडर्ड एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल नहीं है, मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। सेमी परमिएबल होती है तो केवल सॉल्वेंट की एंट्री को परमिट कर दे, सॉल्यूट की एंट्री को परमिट नहीं करती। बट हियर इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दैट इज selectively permeable, means this is equally able to permit the movement of solvent and solute based on the demand में डिमांड किस तरीके की डिमांड है, उस डिमांड के बेसिस पे ये सॉल्वेंट को भी अलाउ करती है और सॉल्यूट को भी अलाउ करती है। सो इज दिस क्लियर टू यू ऑल? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, the plasma membrane, the tonoplast and other biomembranes all are selectively permeable in nature। बहुत बेसिक पॉइंट्स देख रहे हैं अपन। तो सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होंगी, सारी बायो मेम्ब्रेन सिलेक्टिव मेम्ब्रेन होंगी। इवन द टोनोप्लास्ट दैट इज प्रेजेंट अराउंड द वैक्यूल्स, विल सी लेटर, वो भी सिलेक्टिवली परमिएबल ही होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का एक्सचेंज परमिट करती है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिंग आउट द मटेरियल्स विच हैज टू बी एक्सचेंज्ड। ओके, अब मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिटेल में चलते हैं अपन। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मींस व्हाट, द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बेसिकली चार तरीके का होता है माय डियर स्टूडेंट। द फर्स्ट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंड टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, third one is called as co-transport, and fourth and final one is called as the bulk transport। So we are just going to see today the passive transport। passive transport का मतलब whenever
the movement of molecules and the ions will occur as per the concentration gradient. As per the concentration gradient का मतलब होता है जब मॉलिक्यूल्स या आयंस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा होगा तो उसको अपन बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट. व्हेन द मॉलिक्यूल्स एंड द आयंस आर मूविंग फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, देन दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द पैसिव ट्रांसपोर्ट. पैसिव कहने के पीछे रीजन ये है, बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से याद रखना है आपको. पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन द ट्रांसपोर्ट विदाउट द यूज ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी. इसमें किसी भी तरीके से कोई एनर्जी की डिमांड नहीं होती है, ये अपने आप चलता रहता है. तो आपको याद होगा इसके चलते रहने के लिए हमने दो तरीके के चैनल्स भी देखे थे. वन इज कॉल्ड एज लीकी चैनल एंड वन इज कॉल्ड एज वोल्टेज गेटेड चैनल. तो जब लीकी चैनल के थ्रू होगा, जब भी पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा तो कंटिन्यूअसली लीकी चैनल के थ्रू होगा, बिकॉज लीकी चैनल्स आर ऑलवेज फाउंड टू बी ओपन. सो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब समझ में आ गया. एज पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मींस ऑलवेज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन. एंड सेकेंड वन, देयर इज नो डिमांड ऑफ एनर्जी, नो नीड ऑफ एनर्जी. ठीक है, मूव करते हैं इसके टाइप्स के बारे में. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरीके से हो सकता है. फर्स्ट टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन एंड सेकेंड टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. माय डियर चाइल्ड, ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस आपने कई बार पढ़ा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू मेक मोर डिस्कशन अबाउट दैट, बट few points you need to be remember here because you have to go with the solution if any question is there regarding the diffuser. डिफ्यूजन सिंपली हम जानते हैं मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन. एंड हियर डिफ्यूजन भी दो तरीके का होता है. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. Simple diffusion, simply the movement of solid. Remember, movement of solids, movement of solids. Once again I am repeating, movement of solids. Solids means यहाँ पे आपको किसके ऊपर फोकस करना है, on the solids. So movement of solids from the region of higher concentration to the region of lower concentration is called as diffusion or simple diffusion. Are you getting my point? Once again I am making focus on the word solute. So movement of solute from the region of higher concentration to the region of lower concentration is called as the simple diffusion. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, solute का movement higher concentration से lower concentration की तरफ होना simple diffusion कहलाएगा. एक बात ध्यान रखना है आपको, जैसे जैसे डिफ्यूजन चलेगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट का मूवमेंट होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिड्यूस होती चली जाएगी. डियर स्टूडेंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एक वर्ड है, आपने पहले पढ़ा होगा केमिस्ट्रीज में भी. मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिससे आपको क्लियर रहे. ग्रेडियंट का मतलब होता है द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ सेम क्वांटिटी इन अ सेम मीडियम. किसी एक मीडियम में किसी एक ही क्वांटिटी की दो अलग अलग वैल्यूज अगर मिलती हैं तो वो कहलाएगा उसका ग्रेडियंट. अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो यदि किसी एक ही मीडियम में किसी एक सॉल्यूट की दो अलग अलग वैल्यूज अलग अलग पॉइंट पे मिल रही तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो ये माना जाता है कि डिफ्यूजन कब शुरू होता है, व्हेन द two different level of gradients are maintained. Somewhere the solute concentration is high and somewhere the solute concentration is low. ओके, तो जहां हाई है उधर से लो की तरफ मूवमेंट होना शुरू होगा, बिकॉज दिस इज द पैसिव प्रोसेस, नो डिमांड ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. सो अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट धीरे धीरे मूवमेंट होना शुरू होगा. जैसे जैसे मूवमेंट होगा, जैसे जैसे डिफ्यूजन आगे बढ़ेगा, मीडियम में मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन इक्वलाइज होने लगेगी, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट खत्म होना शुरू हो जाएगी. एंड डिफ्यूजन प्रोसेस विल रन टिल द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज गेटिंग निगेलिजिबल. जब तक वो पूरी तरीके से इक्वलाइज ना हो जाए, या कंप्लीट मीडियम विल हैव द इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल. सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल. तो जैसे जैसे डिफ्यूजन बढ़ेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी रिड्यूस होता चला जाएगा. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल में अलग अलग होगा. मैक्सिमम डिफ्यूजन विल अकर देयर इन द गैसेस, देन इन लिक्विड, देन इन द सॉलिड. सॉलिड में सबसे कम, गैसेस में सबसे ज़्यादा होगा. एक और कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन का मतलब ये होता है, यदि हम किसी एक ही मीडियम में किसी एक ही सॉल्वेंट में दो या दो से अधिक सॉल्यूट को यूज करें तो दोनों सॉल्यूट का डिफ्यूजन एक दूसरे से पूरी तरीके से फ्री होगा, and no solute will affect the diffusion of any other solute. So this is what called as independent diffusion. Means what? Both the solute present or all the solids present in a medium or in a same solvent are diffusing independently. That is what called as the law of independent diffusion. Example के लिए
अगर मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूँ, शुगर सॉल्यूशन बनाता हूँ, और शुगर सॉल्यूशन में आई एम जस्ट पुटिंग सम ड्रॉप्स ऑफ द लेमन, सम ड्रॉप ऑफ द साल्ट आल्सो, सो साल्ट का डिफ्यूजन शुगर के डिफ्यूजन से फ्री होगा, लेमन का डिफ्यूजन साल्ट के डिफ्यूजन से फ्री होगा, और सभी एक दूसरे से फ्री डिफ्यूज करेंगे, किसी का डिफ्यूजन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा. दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट डिफ्यूजन. मूविंग ऑन टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन. टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि टेम्परेचर से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स विल गेट लाइट वेटेड होने के साथ में उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा एंड दे विल स्टार्ट मूविंग रैपिडली टू द अनदर सरफेस. सो बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ डिफ्यूजन विल इंक्रीज. Concentration of medium is inversely proportional to the rate of diffusion, means what, as we are going to increase out the concentration, then the rate of diffusion will be slower one. If we are going to reduce out the concentration, then rate of diffusion will be faster. Size and weight of the diffusing particle बहुत आसान है, is directly inversely proportional to the रेट ऑफ डिफ्यूजन. जितना छोटा पार्टिकल उतना ज्यादा डिफ्यूजन, जितना बड़ा पार्टिकल उतना कम डिफ्यूजन, जितना हैवी पार्टिकल उतना कम डिफ्यूजन, जितना लाइट पार्टिकल उतना ज्यादा डिफ्यूजन. DPD will see the later on. DPD is directly proportional to the rate of diffusion, means what, as DPD will increase, the rate of diffusion will increase. We'll see the DPD later on. Moving on to the next concept, that is facilitated diffusion. फैसिलिएटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है. फैसिलिएटेड डिफ्यूजन इज समटाइम अकरेंस विद द हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक प्रोटीन दैट आर कॉल्ड एज चैनल प्रोटीन. कभी कभार क्या होता है, सम मॉलिक्यूल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सेल, बट दे आर नॉट एबल टू क्रॉस द सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन उनको अलाउ नहीं करती अंदर आने के लिए, लेकिन दोज मॉलिक्यूल्स आर वेरी मच important. On such situation, what will happen, some specified proteins are being arranged on the surface of cell membrane. Those proteins are called as carrier proteins. ये प्रोटीन्स उनके साथ में अटैच होती हैं और अटैच होने के बाद में उसको लेके आती हैं, सेल के अंदर छोड़ती हैं और वापस वो जाके सरफेस पे चले जाती हैं. दिस इज व्हाट कॉल्ड एज पिंग पोंग मैकेनिज्म. पिंग पोंग मैकेनिज्म. The protein is loaded, the carrier protein is loaded with the substance or molecules or ion, taking them in, आफ्टर रिलीजिंग आउट, मूविंग आउट. सो पिंग एंड पोंग. पिंग मतलब अटैच करना, लेके जाना, रिलीज करना, और पोंग मतलब खाली होके वापस आ जाना. तो पिंग पोंग मैकेनिज्म किस में होता है, फैसिलिएटेड डिफ्यूजन में. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन इज कॉल्ड एज फैसिलिएटेड डिफ्यूजन. इन कैरियर प्रोटीन्स को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, परमिएस कहा जाता है. ध्यान रखना, the facilitated diffusion is having the faster rate of diffusion in comparison to the normal diffusion. और ये खास बात ये है, because this is mediated by proteins. So if the carrier proteins are being affected by any of the inhibitor, so what will happen if the inhibitor affect the carrier protein? So definitely the process of transportation will also be affected. So this is what the facilitated diffusion. A quick view of the second way of the passive transport, that is osmosis. This is vice versa to the diffusion. Vice versa का मतलब ऐसा नहीं होगा कि lower concentration to higher concentration हो जाएगा. Vice versa means what, कि this is the movement of solvent or the water molecule from the region of हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी वहां से सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जिधर ज्यादा है. शब्दों का खेल है बेटा. रिमेंबर, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. तो जिस जगह पे सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस जगह पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डेफिनेटली कम होगी. तो ये मूवमेंट भी तब तक चलता रहेगा जब पूरे के पूरे मीडियम में, जब तक कि पूरे के पूरे मीडियम में कंप्लीट इस्टेब्लिशमेंट नहीं हो जाए, इक्वलिटी नहीं आ जाए कंसंट्रेशन की. सो द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट मीन्स द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दैट मीन्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन. द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन from the region of higher water concentration to the lower water concentration means what, from the dilute to the concentrate, from the region of dilute to the concentrated region, means from the area of lower solute to the area of higher solute. तो ये क्लियर हो गया. जस्ट अभी मैंने आपको ये बताया कि यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो वहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और अगर कंसंट्रेट सॉल्यूट होगा या कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी. तो होगा क्या,
ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट विल अकर फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर सॉल्यूट टू द एरिया ऑफ हायर सॉल्यूट सो दैट कि इक्वली द सॉल्वेंट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द मीडियम। अब ये दो तरीके का हो सकता है बेस्ड ऑन द मूवमेंट of the solvent, endoosmosis and the exoosmosis. Endoosmosis is the movement of solvent inside the cell is called as endoosmosis. जब भी एंडोऑस्मोसिस होगा तो सेल मस्ट बी केप्ट इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये ध्यान रखने की बात है। जब भी एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी तो सेल को किस में रखना है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखना है। हाइपोटोनिक में रखने के कारण वाटर अंदर आएगा, वाटर अंदर आएगा तो सेल स्वेल अप हो जाएगी। हम बहुत कॉमन जानते हैं इन एग्जांपल्स को, रेजिन को डालना वाटर के अंदर, रेजिन का स्वेल अप हो जाना, किसी ग्रेन को वाटर में डालना उसका स्वेल अप हो जाना, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोऑस्मोसिस। किसी भी सीड को वाटर में डालना, स्वेल अप हो जाना। तो व्हेनेवर वी आर कीपिंग एनी सेल देयर इनसाइड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देन the solvent will move inside the cell and due to that the cell will increase in the size, the cell will swell up. और कभी पूछा जाए इससे हायर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, इवन दो विल लर्न द कॉन्सेप्ट देयर इन द प्लांट वाटर रिलेशनशिप और द प्लांट फिजियोलॉजी, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। जिधर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा वाटर का मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होगा। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल ड्यू टू द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ध्यान रखना, ज़्यादा समय तक रखेंगे तो सेल विल गेट बर्स्ट आउट। ओके, हीमोलिसिस की प्रोसेस आपने देखा था। आरबीसी को वी हैव केप्ट देयर इन द डिस्टिल वाटर फॉर लॉन्गर टाइम, वाटर मूव्ड इन, द आरबीसी हीमोलाइज्ड, फट गई, सेल मटेरियल सब कुछ बाहर आ गया वहां पे। एक्सोस्मोसिस अपोजिट टू दिस वन मीन्स इफ यू आर कीपिंग द सेल देयर इन द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालने के कारण बाहर की तरफ अब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो द वाटर और सॉल्वेंट विल कम आउट एंड सेल विल गेट श्रिंक आउट। दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मोर। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब ये होता है कि इफ वी आर कीपिंग अ प्लांट सेल इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, यदि हम किसी प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उस समय उसका सारा साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्सोप्लाज्म, और उस कंडीशन में सेल को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या होगा, the keeping if we are keeping the cell into a, if we are keeping the plant cell into a hypertonic solution, so due to the exoosmosis all the cell cytoplasm will come out and cell will get shrink up, that is what called as the प्लाज्मोलिसिस। और इस कंडीशन में सेल को प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, पिकल्स डालते हैं तो पिकल्स डालने में हाई साल्ट कंटेंट में रखा जाता है उसको। तो हाई साल्ट कंटेंट मतलब बाहर आपने क्या किया, ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा दिया तो सारा का सारा वाटर अंदर से बाहर निकल आएगा, सेल साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा एंड ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, द that pickles can be preserved for so longer time। अगर कभी पूछा जाता है कि why the pickle makers are adding additional salt to the pickles, so just because to ensure the preservation from the desiccation or the degeneration or damage to the pickles। तो वो किस प्रोसेस के कारण होता है, ड्यू टू द प्लाज्मोलिसिस। अब यदि किसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को वापस अपन डिस्टिल वाटर में डाल दें, प्योर वाटर में डाल दें, तो एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी और एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस आने के कारण वो सेल फिर से स्वेल अप हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड एज डीप्लाज्मोलिसिस एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीप्लाज्मोलाइज्ड, द सेल इज कॉल्ड एज डीप्लाज्मोलाइज्ड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीप्लाज्मोलिसिस। क्लियर? प्लाज्मोलिसिस का मतलब हाइपरटोनिक में प्लांट सेल को डाला तो सेल साइटोप्लाज्म बाहर आ जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइज्ड सेल। पिकल्स का एग्जांपल दिया, प्रिजर्वेशन का एक तरीका होता है। जेम्स को, जेलीज को पूरी तरीके से इसी टाइप से डेवलप किया जाता है कि उसका एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट बाहर निकाल दिया जाता है सो दैट कि दे कैन बी प्रिजर्व फॉर द लॉन्गर टाइम। दिस इज बिकॉज ऑफ द प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस। डीप्लाज्मोलिसिस, नॉर्मली प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर अपन डिस्टिल वाटर में डाल देते हैं, एंडोऑस्मोसिस के कारण व्हाट विल हैपन, इट विल swell up once again. Okay, now next half of the membrane transport, the second type of membrane transport, that is called as active transport. First one was passive transport, दो थे उसमें, diffusion और osmosis. Next one is called as active transport. Active transport is just opposite to the passive transport. Active transport पूरी तरीके से passive transport के vice versa है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, मूवमेंट्स ऑफ आयंस, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर्स अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मीन्स द मूवमेंट अकर्स एज पर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द रीजन ऑफ
higher concentration to the region of lower concentration. But in case of active transport उसका उल्टा होगा, molecules का movement कहाँ होगा, from the region of lower concentration to the higher concentration. So this is clear, the movement of molecules and the ions from the region of lower concentration to the higher concentration is called as active transport against the concentration gradient, not toward the concentration, not as per the concentration gradient. तो जहां पे भी ऐसी प्रोसेस होगी, that process will demand the great amount of energy and that energy will be provided by the ATP that is being received from the metabolic processes. So ये क्लियर हुआ अपने को. एक जगह थी जहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हो रहा था, एक प्रोसेस थी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जहां पे किसी भी तरीके से कहीं पे भी एनर्जी का यूज नहीं हुआ, दैट वाज पैसिव और इनएक्टिव. But when we are dragging the something against the concentration, lower concentration to the higher concentration, that process is called as the active process. And because we are dragging against the concentration, so that process demands a great amount of energy, and that great amount of energy is being provided in form of ATP to the cells. इसका एग्जाम्पल है सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप. ये हम और डिटेल में पढ़ेंगे. सोडियम आयन पोटेशियम आयन पंप इज बेसिकली अकर्स रन्स ड्यूरिंग द इम्पल्स ट्रांसमिशन मेम्ब्रेन. जब नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है, इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन्स के थ्रू एक्सचेंज किया जाता है, तो उस समय सोडियम आयन को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन पंप किया जाता है बाहर की तरफ, पोटेशियम आयन को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन पंप किया जाता है अंदर की तरफ. सो दिस इज व्हाट पंप वर्ड का मतलब ही होता है फोर्सफुल एक्सट्रैक्शन, फोर्सफुल प्रोसेस. तो फोर्सफुल प्रोसेस है, इसीलिए इसको अपन पंप कहते हैं. नेक्स्ट वन इज द को ट्रांसपोर्ट. को ट्रांसपोर्ट ऑल टुगेदर, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं एट अ सेम टाइम, देन दिस इज कॉल्ड एज को ट्रांसपोर्ट. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक साथ दो तरीके के मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज को ट्रांसपोर्ट. सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल टुगेदर, दैट इज कॉल्ड एज को ट्रांसपोर्ट. पहला कहलाता है यूनिपोर्ट. यूनिपोर्ट में अगर कोई आयन चैनल खुला तो उसके वहाँ से सिंगल मॉलिक्यूल ही अंदर जाएगा. तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वन मॉलिक्यूल is free from the another molecule, that is called as uniport. Uni means single, port means transport. So if one molecule, the transportation of one molecule is free from the another molecule, that is called as uniport. अब ये देखें, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ये मॉलिक्यूल था और सिंगल एरो के थ्रू आया. ये एरो के साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं. तो यूनिपोर्ट किसके थ्रू होगा, सम कैरियर प्रोटीन, एंड दोज कैरियर प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज यूनिपोर्टर. सिम्पोर्ट कुल मिला के एक लिफ्ट लेने जैसी कंडीशन है. लिफ्ट लेने जैसी कंडीशन की समवन इज मूविंग टू अ पर्टिकुलर प्लेस और उसी तरफ कोई दूसरा जाने वाला है तो उससे लिफ्ट मांगता है और उसी साथ में वो भी चला जाता है वहाँ पे. तो सिम्पोर्ट में भी वही होता है कि एक आयन चैनल खुला, उस आयन चैनल के खुलने के समय ही उसी टाइम पे जब एक मॉलिक्यूल जा रहा था, साथ साथ दूसरा मॉलिक्यूल भी अंदर या बाहर निकल जाता है. ठीक है, बट डायरेक्शन दोनों की सेम होगी. सिम्पोर्ट में बोथ द मॉलिक्यूल्स विल मूव इन द सेम डायरेक्शन. सो मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन. The carrier protein is working, that is called as symporter. यहाँ पे देखें, these two molecules are there, one is moving in, और दोनों अंदर ही की तरफ जा रहे हैं. ये दोनों बाहर की तरफ भी जा सकते, तो that will also be known as symport. Third one is antiport. ये भी symport के जैसा है, दो मॉलिक्यूल आएंगे लेकिन दोनों मॉलिक्यूल का मूवमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे से फ्री होगा. One will move in and one will move out. Movement of molecule in opposite direction. Antiporter is carrier protein. Okay. यहाँ पे देखें, एक मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है और दूसरा मॉलिक्यूल उसी समय बाहर जा रहा है. तो दिस इज व्हाट द को ट्रांसपोर्ट. यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट. यूनिपोर्ट सिंगली, सिम्पोर्ट दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में, एंटीपोर्ट दो मॉलिक्यूल एक साथ बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. मूविंग ऑन टू द फोर्थ टाइप ऑफ द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, दैट इज कॉल्ड एज बल्क ट्रांसपोर्ट. बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है इन बिग क्वांटिटी. अभी तक हम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, आयंस की बात कर रहे थे, एंड हियर समटाइम द सेल मेम्ब्रेन इज सपोज्ड टू टेक द मॉलिक्यूल इन द बिग क्वांटिटी, इन द बल्क क्वांटिटी. सो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल इन द बल्क क्वांटिटी इज कॉल्ड एज बल्क ट्रांसपोर्ट. ज़्यादा क्वांटिटी में मॉलिक्यूल्स को अंदर लेना या बाहर निकालना इज कॉल्ड एज बल्क ट्रांसपोर्ट. So transportation of the molecule in bulk quantity is called as bulk transport, and this is useful for those who cannot penetrate for the hydrophobic layer of the lipid. ये उन मॉलिक्यूल के लिए यूजफुल होता है जिन मॉलिक्यूल में एक कैपेसिटी नहीं होती कि दे कैन पेनिट्रेट आउट द हाइड्रोफोबिक लेयर ऑफ द लिपिड.
So this is very much useful for those molecules which cannot pass out easily from the hydrophobic layer of the lipid or hydrophobic tail of the lipid. तो उन molecules को एक झटके में एक साथ सेल के अंदर लिया जाता है by the process of bulk transport. Okay, bulk transport can be of two types. बल्क ट्रांसपोर्ट दो तरीके का हो सकता है. पहला कहलाता है एंडोसाइटोसिस, टेकिंग द मटेरियल इनटू द सेल इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस, एंड एक्सोसाइटोसिस, रिलीजिंग आउट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द सेल, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस. सो एंडोसाइटोसिस मटेरियल्स को सेल के अंदर लेना. ग्रीक वर्ड है एंडो, विद इन, काइटोस सेल. तो टेकिंग द लार्ज साइज मॉलिक्यूल इनटू द सेल इज कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस दो तरीके की हो सकती है. वन इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस एंड अदर वन इज कॉल्ड एज फेगासाइटोसिस. दोनों प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, एक जैसी प्रोसेस है, सेम टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज देयर, बट डिफरेंस इज ओनली ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल. इन केस ऑफ पिनोसाइटोसिस सेल इज टेकिंग द मटेरियल इन, दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, एंड इन केस ऑफ फेगासाइटोसिस द मटेरियल विच इज टेकिंग इन इज इन फॉर्म ऑफ सॉलिड फॉर्म. सो लिक्विड फॉर्म में टेकिंग द लिक्विड मटेरियल इनटू द सेल इज कॉल्ड एज पिनोसाइटोसिस, बिकॉज लिक्विड मटेरियल को अंदर लिया जा रहा है. तो पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं. सो टेकिंग द लिक्विड मटेरियल इनटू द सेल इज कॉल्ड एज सेल ड्रिंकिंग या पिनोसाइटोसिस. जो भी मटेरियल अंदर जाएगा एक फूड वैक्यूल के अंदर स्टैब्लिश होगा, वहीं पे उसका डाइजेशन होगा. सो द मटेरियल इज स्टोर्ड इनसाइड द फूड वैक्यूल, दैट इज कॉल्ड एज पिनोसोम. पिनोसाइटोसिस के टाइम पे बनने वाला, यूज होने वाला फूड वैक्यूल क्या कहलाएगा? पिनोसोम. इसी पिनोसोम में लाइसोसोमल हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विल बी यूज्ड एंड दीज एंजाइम्स विल बी यूज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ दोस लिक्विड मटेरियल. तो सेल ड्रिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. Same kind of concept is there with the solid material. Thus, taking in the solid material is called as phagocytosis. Phage in, to eat, काइटोस cell. So taking the solid material into the cell, solid material को अंदर ले रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को अपन सेल ईटिंग भी कहते हैं. लिक्विड मटेरियल को अंदर लेने के कारण उसको सेल ड्रिंकिंग कहा था. सॉलिड मटेरियल को अंदर लेने के कारण इसको अपन सेल ईटिंग कहेंगे. द फेगासाइटोसिस इज अ वास्ट टर्म यूज्ड इन द केस ऑफ सेल फिजियोलॉजी. हर जगह फेगासाइटोसिस वर्ड का यूज होता है. इसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करें कि दिस इज द वर्ड विच इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ डाइजेशन और टेकिंग द मटेरियल ऑफ इन. हर जगह यूज होता है. लाइक इन केस ऑफ इंजेक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब डाइजेशन की प्रोसेस करते हैं तो डाइजेशन में इंजेक्शन और डाइजेशन पूरी तरीके से फेगासाइटोसिस के थ्रू होगा. लाइक दैट अमीबा हमने देखा हुआ है. प्रोटेक्शन, जब हमारी फेगासाइटिक सेल, हमारी बॉडी में भी फेगासाइटिक सेल्स हैं, दोस फेगासाइटिक सेल्स आर अटैकिंग ऑन द जर्म्स टू डाइजेस्ट देम, टू किल देम. वो प्रोटेक्शन में सपोर्ट करेंगे. इसी प्रोटेक्शन के थ्रू इम्यूनिटी डेवलप होगी. हमारे किलर सेल्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं बॉडी में. दोस टी लिम्फोसाइट सेल्स आर वर्किंग टू किल द पैथोजन, और वो सारी मैक्रोफेजिक बिहेवियर शो करते हैं. तो मैक्रोफेज the phagocytic behavior or phagocytosis is not a limited term. Instead it is a broad term of the cell physiology. Simply हम ये माने कि जब भी सेल ने किसी को खाया, किसी भी मटेरियल को यूज किया, किसी भी मटेरियल को इंजेस्ट किया और डाइजेस्ट किया, so that process is called as phagocytosis. Whether that material is ingested or digested for the purpose of digestion or nutrition or for the protection or for the immunity, ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से हो सकता है. ओके, यहाँ पे भी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जैसे इंजेक्शन की प्रोसेस होगी, इंजेक्शन के बाद में द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन विल बी कंप्लीटेड इनसाइड अ फूड वैक्यूल. उस फूड वैक्यूल को हम क्या कहेंगे? फेगासोम. ऊपर कहा था पिनोसोम, यहाँ कहेंगे फेगासोम. इस फेगासोम को फेगासोम में आए हुए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइसोसोमल एंजाइम की जरूरत पड़ेगी. सो फेगासोम विल ज्वाइन टू द लाइसोसोम एंड विल फॉर्म द फेगालाइसोसोम. ओके, फेगालाइसोसोम मीन्स फेगोसोम प्लस लाइसोसोम. और इसमें अब लाइसोसोम अपने डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा एंड ड्यू टू दोज डाइजेस्टिव एंजाइम द फूड विल बी डाइजेस्टेड प्रॉपरली. एक प्रोसेस ये दोनों में कॉमन है. पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस दोनों में कॉमन है. ओनली द डिफरेंस इज ऑफ व्हाट? द डिफरेंस इज ऑफ द नेचर ऑफ फूड. द डिफरेंस इज ऑफ नेचर ऑफ फूड. सो क्या होगा? फूड दैट इज सॉलिड और लिक्विड मूव्ड इनटू द सेल. सेल में स्यूडोपोडिया, सपोज करें अमीबा है तो कोई भी सेल प्रोजेक्शन आएगा, उस सेल प्रोजेक्शन के थ्रू इन मटेरियल्स को अंदर लिया जाएगा. दीज मटेरियल्स विल बी टेकन इनसाइड द फूड वैक्यूल. ये फूड हो गया, या तो लिक्विड होगा या तो सॉलिड होगा. दैट विल बी टेकन इनसाइड द मटेरियल, इनसाइड द फूड वैक्यूल. इसी फूड वैक्यूल को फेगासोम या तो पिनोसोम कहेंगे एज पर द नेचर ऑफ फूड मटेरियल. इसके साथ में लाइसोसोम आके जुड़ जाएगा एंड फेगा लाइसोसोम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा. लाइसोसोम विल डाइजेस्ट ऑल दिस मटेरियल्स विद द हेल्प ऑफ द
digestive juices are digestive enzyme present here. Okay, so this is what the process of endocytosis, अंदर लेना और उनका digestion करना, pinocytosis liquid material का digestion और phagocytosis solid material का digestion. The second process or second type of bulk transport is called as exocytosis, just opposite to the endocytosis. Endocytosis में हमने materials को अंदर लिया था, exocytosis में the cell has to release out the material. My dear child, this is called as cell vomiting. Vomit out कर रही है cell, बाहर material को निकाल रही, तो this is why this is called as cell vomiting. Cell eating, cell drinking. Drinking means pinocytosis, eating means phagocytosis, vomiting means the releasing out of the material. Vomit out कर देना, undigested food material को बाहर निकालना, excretory waste को बाहर निकालना, secretory material को बाहर निकालना. हर जगह जहां कहीं भी रिलीज या सिक्रीशन की प्रोसेस होगी, दैट रिलीज एंड सिक्रीशन इज द एक्सोसाइटोसिस. टीयर ग्लैंड ने टीयर को रिलीज किया ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस. gastric gland releases the gastric juice due to the exocytosis. Endocrine glands releases hormones due to the exocytosis. जहां कहीं भी secretion word आया, release word आया, that is because of the exocytosis. So that is found in the secretory cell. हमने अभी देखा था कि डाइजेशन हो चुका था, ये वेसिकल्स बनती हैं, तो वहाँ पे फेगासोम और पिनोसोम कहते थे. अब यहाँ पे वट एवर द मटेरियल इज बिंग सिंथेसाइज्ड बाय द सेल दैट विल बी स्टोर्ड इनसाइड अ वेसिकल दैट इज कॉल्ड एज सिक्रेटरी वेसिकल. इस सिक्रेटरी वेसिकल का टाइम, जब भी टाइम आएगा, सिक्रेटरी वेसिकल बर्स्ट हो जाएगी एंड ऑल द मटेरियल्स विल गेट released outside of the cell. So this is what the membrane transport function of the cell membrane. Everything we have covered. In the previous lecture we have covered the structural part of the cell membrane, and in today's lecture we have covered the functional part as well as the chemical composition of cell membrane, including the modification of cell membrane. So this is what for today's lecture. We'll move for the next lecture regarding the cell wall. Cell envelope में next structure है आपका cell wall. तो next lecture में I will discuss the cell wall. Okay, so till the time, thank you, thanks for watching.